Okay, let's start with the continue with the lecture on relational algebra. So yesterday we discussed the basic fundamentals of these operations, and we did a few basic queries. This query we did कि how your relational algebra sigma operator is working, and your sigma is known as selection operation in relational algebra. So after that we discussed about the syntax of relational algebra query, कि how is it is working. So today we will discuss about project operation. So basically what is the purpose of projection is just to you can say filter some columns. अगर आप चाहते हो कि कुछ कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएं, कुछ कॉलम्स आपके डिस्प्ले नहीं करवाने आपने, देन यू विल बी यूजिंग pi operator, and this is known as your projection operator in this case. So here we are considering again the same relation, okay, but we are having only 3 columns in this relation. After that we are saying कि pi a comma c from r is the name of the relation. So in our case the relation is r. So next we have pi a comma c, and here we are selecting this from relation r. So column value of a and b will be displayed. So this is the output of this relation, which is saying a comma a and c columns will be displayed. Now see what is happening in this case. It is saying that these two rows are same. Basically these are same, these are producing same type of result, no other changes there. If we want to retrieve only these two columns, then the values are same. So if we optimize this column, optimize this, then we will be getting this output after removing of duplicates, because these two rows were same. So one row was removed and we will get this thing. You can go with this one also, no issues. You need not to write this output. If you are getting confused, you can simply write this output without removing duplicates. Now what is the notation of projection operation is simply we write the symbol pi, then list of columns, a list of attributes. Suppose we are having attributes a1 a2 k and so on, and then we are selecting it from relation r. Now in this case these a1 a2 and so on are our attribute names, that is name of the columns, and r is the relation name. Now what will the result of this? It will be simply again columns. This will be the result, will be again columns. It means if we are talking about columns, there will be some rows also, ठीक है, बट रोज पे हमने कोई फिल्ट्रेशन नहीं की है. कॉलम्स जो आपने सिलेक्ट करे हैं वही आएंगे, बट जो रोज होंगी वो सारी आएंगी, ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव सेइंग के नाउ वी से कि the result is defined as the relation of k columns obtained by erasing the columns that are not listed. Means जो हमने नहीं लिस्ट करवाने थे उनको इसने remove कर दिया. So duplicate rows were removed from the result since the relations are sets in this case. Now what we need to do here, we are saying कि now suppose we want to display only the account number and balance from account table. So we simply write pi, name of the column was account number, next column was your balance column, and then we are retrieving it from the relation that was account. So next we have union operation. Now in this case we are considering two relations, one is R, another one is S. अगर हम इस दो सेट्स का R and S का आप यूनियन करोगे, so you will get all values of A and all values of B, but duplicates will be removed. R and S की values जब आएंगे, so first row of R relation is alpha and 1, so it will be displayed. Then second is alpha 2 will be there. Then beta 1 will be there. After that from this was alpha 2. Now alpha 2 has already been retrieved from R relation. So this is a duplicate key, duplicate row, and we are talking about union. तो यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट्स को, डुप्लीकेट जो रोज होंगे उनको रिमूव कर देगा. अगर आप यूनियन ऑल यूज करोगे तो जो आपकी ये वाली रो है अल्फा एंड 2 की, ये 2 टाइम्स अपीयर होएगी रिजल्ट में. अदरवाइज अगर आप यूनियन यूज कर रहे हो तो वो सिंगल टाइम ही रिटर्न होएगी, दैट इज अल्फा 2. देन नेक्स्ट रो इज beta 3, from this will be returned. So this is the union operation. Next, how do we write the syntax of union operation? Is simply we write R union S, means relation 1 and relation 2. Fine. So it will be doing, it will simply say
it will return all the tuples, that is all the rows such that all those rows belongs to relation R or simply or they belong to relation S. तो दोनों में से जो आपका रिजल्ट रिट्रीव हो रहा है, चाहे वो आपका T मीन्स ऑल टपल्स, अब वो टपल्स आपके R रिलेशन के भी हो सकते हैं और वो टपल्स आपके S रिलेशन के भी हो सकते हैं. ऑल द टपल्स विल बी returned or displayed. So next we say for R union as to be valid, we say Rn must have the same arity. So whenever we are talking about arity, it means same number of attributes should be there. ठीक है, अगर आप आर एंड एस यूनियन पे आर एंड एस रिलेशन पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, देन देयर इज अ कंडीशन कि उनकी एरिटी मींस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स सेम होने चाहिए. ठीक है, ओनली देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म यूनियन ऑपरेशन विद वैलिड रिजल्ट्स. नेक्स्ट वी से द एट्रीब्यूट डोमेन्स मस्ट बी कंपैटिबल. अब उसमें जो एट्रीब्यूट की डोमेन है, डोमेन मींस रेंज. ठीक है, इन दिस केस रेंज में से कि डेटा टाइप भी उनकी ये नहीं है कि एक टेबल में आर में आपके पास 3 कॉलम्स हैं, एस में भी 3 कॉलम्स हैं, सो यू से कि एरिटी सेम होगी. एरिटी सेम होगी बट उसमें ये भी कंडीशन है कि जब उस पर यूनियन परफॉर्म कर रहे हो तो उनकी जो डेटा टाइप्स है वो भी सेम होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपके एक साइड पे सपोज इन दिस केस ए रिलेशन है, इसकी डेटा टाइप है वेरकेर, यहाँ पे भी ए रिलेशन की डेटा टाइप वेरकेर है, जो करेक्टर है. डी में आप ए बी सी डी जैसे कुछ और अल्फाबेट या कोई भी सिंबल लिख रहे हो तो बी पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा. इट विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड यूनियन ऑपरेशन. So here we say first condition is the arity, that is the number of attributes should be same. Then we say the attribute domains must be compatible. जो attribute domains है वो compatible होनी चाहिए. Example, here is second column of R deals with same type of values as does the second column of S. In that case we have considered. So next we have example which says to find all the customers with either an account or loan. Now हमें क्या चाहिए, वो सारे कस्टमर्स चाहिए जिनका जहाँ तो कोई अकाउंट है जहाँ फिर उनका लोन है. नाउ इट इज सिंपली सेइंग कि कस्टमर का नेम रिटर्न करवा दो. तो आप पाई के साथ क्या लिख रहे हो, कस्टमर नेम. ठीक है, और आपने दोनों टेबल्स में से आर में से भी, डिपॉजिटर में से भी कस्टमर नेम चाहिए और बोरोवर में से भी. नाउ सी द रिलेशनल स्कीमा दिस वन. तो इस केस में हमें जो वैल्यूज चाहिए वो कहाँ से चाहिए, आपके पास डिपॉजिटर में से, ठीक है, और बोरोवर में से. मींस जिनका जहां तो कोई अकाउंट है, जिनका अकाउंट है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, डिपॉजिटर में से. अब जिन्होंने लोन ले रखा है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, बोरोवर में से. रिक्वायर्ड क्या है हमें, कस्टमर नेम. सो वी विल पिक कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर एंड कस्टमर नेम फ्रॉम बोरोवर. सो अवर क्वेरी विल बिकम लाइक दिस के पाई कस्टमर नेम, रिलेशन का नेम क्या आ गया ब्रैकेट में, डिपॉजिटर. नेक्स्ट यूनियन ऑपरेशन आ जाएगा एंड द क्वेरी विल बी पाई, फिर आप लिखोगे कस्टमर नेम और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बोरोवर. तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों टेबल्स में से किसी भी टेबल में कस्टमर अगर लाई करता है, चाहे उसका कोई अकाउंट है, चाहे वो उस बैंक से लोन ले रहा है, वो बोरोवर है, दोनों टेबल्स में से कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी. फाइन. अब अगर मुझे ये चाहिए कि वो कस्टमर्स आ जाएं जिनका लोन भी है और जिनका सेविंग अकाउंट भी है, तो सिंपली आई विल डू यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन. ठीक है, तो मेरे पास एक ही सिंपल सा रूल है, अगर दोनों में कॉमनैलिटी देखनी है देन आई विल बी सिंपली यूजिंग इंटरसेक्शन इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूनियंस. नो अदर need to do anything in the query, no other change is needed in the query. Now see the query will become like this, pi customer name depositor union pi customer name from borrower. ठीक है, नेक्स्ट इज अवर सेट डिफरेंस ऑपरेशन. सेट डिफरेंस ऑपरेशन इज लाइक कि आपके पास सपोज मुझे ये चाहिए कि जो इस रिलेशन में वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज आ जाएं जो इस रिलेशन में है वो वाली माइनस करके. मींस जो इसमें आर माइनस एस, तो आर माइनस एस व्हेन वी विल बी वर्किंग इन दिस थिंग, बट वी विल डू इज के फर्स्ट रो ऑफ दिस. ठीक है, नाउ दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एस रिलेशन, सो दिस विल बी डिस्प्लेड. नाउ नेक्स्ट इज अल्फा एन टू, दिस इज प्रेजेंट इन एस, तो आर माइनस एस ये वाली रो हमारी
कैंसिल हो जाएगी, इट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द रिजल्ट. नाउ थर्ड वन इज बीटा and 1. So beta and 1 is not present in this case, so beta and 1 will be represented. So this is r minus s. ठीक है, अगर मैं रिलेशनशिप परफॉर्म करूं s माइनस r, तो कौन कौन सी रोज आएंगी? एनी स्टूडेंट? इफ आई परफॉर्म द ऑपरेशन s माइनस r, बीटा 3 मैम, बीटा 3 मैम. yeah, Beta only beta 3 3 will be represented. Fine. अगर आप s माइनस r करोगे तो हमारे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी s की जो r में प्रेजेंट नहीं है, तो एक ही रो आएगी, दैट इज बीटा 3. नाउ सपोज अगर मुझे क्वेरी लिखनी हो, लेट्स गो बैक टू अवर स्कीमा. इन दिस स्कीमा अगर मुझे इसमें ये परफॉर्म करना हो कि मेरे पास वो सारे कस्टमर्स के नेम आ जाएं, जब कस्टमर आ जाएं जिनका सेविंग अकाउंट है बट बोरोवर अकाउंट नहीं है, तो क्या होगा? आई विल सिंपली राइट पाई कस्टमर नेम फ्रॉम डिपॉजिटर माइनस पाई कस्टमर नेम फ्रॉम बोरोवर. ठीक है, अगर इसका रिवर्स करना होगा कि वो सारे आ जाएं कि जिनका बोरोवर वाला अकाउंट है बट डिपॉजिटर नहीं है, सो आई विल डू बोरोवर माइनस डिपॉजिटर. ठीक है, तो ये आपके सेट ऑपरेशन की वर्किंग हो जाएगी. नाउ सी द एग्जांपल फॉर दिस. सिंपल नोटेशन है r माइनस एस और s माइनस आर. यू कैन डू एज यू वांट, जैसे आपका लॉजिक होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इस नोटेशन को आप चेंज कर दोगे, एट्रीब्यूट्स आपके चेंज हो जाएंगे. सो इट इज डिफाइंड एज r माइनस एस. जब आप डिफाइन करें, इट मींस इट विल बी रिटर्निंग ऑल द टपल्स. ऑल दोस टपल्स विल बिलोंग टू r एंड दोस टपल्स विल नॉट बिलोंग टू s. क्या है इसमें का मीनिंग r माइनस एस का? कि वो सारे टपल्स जो r को बिलोंग करते हैं बट s को बिलोंग नहीं करते. तो अगर ये s माइनस r होता तो नोटेशन क्या आ जाती? t विल रिमेन एज इट इज फॉर टपल्स सच दैट t बिलोंग्स टू s एंड t डजंट बिलोंग्स टू r. तो आपका s माइनस r की नोटेशन हो जाती वो. ठीक है, सो नेक्स्ट वी से सेट डिफरेंस मस्ट बी टेकन बिटवीन कंपैटिबल रिलेशंस. अगेन रिलेशनशिप कंपैटिबल होनी चाहिए, मींस जो हमारा यूनियन का रूल था दैट विल बी अप्लाइड, दैट इज एरिटी शुड बी सेम एंड एट्रीब्यूट डोमेन्स of r and s must again be compatible. Now whenever we are talking about Cartesian product, so in this case we are considering two relations, r and s are our relations. So here we are saying कि अगर हमारा ये r रिलेशन है और आप r एंड s का क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो उस केस में क्या आएगा? ऑल नाउ सी दिस अल्फा एंड 1, when it will be produced with this, it will be like alpha 1 and alpha 10a. फिर अल्फा 1 के लिए कितनी आएंगी? जितनी इसमें एंट्रीज हैं. ठीक है, सो अल्फा 1 भी हैविंग 4 एंट्रीज और ये वाली 4 एंट्री साथ में एम्बेड हो गई. बीटा के साथ क्या आ गया? बीटा 2 विल कम एज इट इज और ये वाली सारी एंट्रीज इसके साथ अटैच हो जाएंगी. सो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, यू कैन कॉल इट. ठीक है, तो दो रिलेशंस का हमारे पास टेबल आ गया. एनी डाउट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट? नो मैम. किसी को? नो मैम. क्लियर? इज इजी? फाइन. यस नाउ मैम. लेट्स सी इसको आप कैसे डिफाइन कर रहे हो? सो वी आर डिफाइनिंग आर कार्टेशियन प्रोडक्ट एज सच दैट वी से t and q, सम टपल्स ऑफ t एंड टपल्स ऑफ q, इनको कंबाइन करके कर रहे हो. ठीक है, सो t and q मींस डबल टपलिंग आ गई आपके पास. t जो है वो r से आ रहा है और q जो आपका है वो s से आ रहा है. ठीक है, इफ यू वांट टू यूज t हियर देन आपको क्या यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ जाएगी कि t बिलोंग्स टू s r एंड t बिलोंग्स टू s आ जाएगा. यू कैन राइट इट दिस वे आल्सो. ठीक है, नो इश्यूज इन दैट. अगर आप सिंपल यहाँ पे t ही रखना चाहते हो तो यहाँ पे q की जगह पे आपके पास t आ जाएगा. ठीक है, so here we say assume that the attributes of r and s and s are disjoint. What do you mean by disjoint? It means कि जो उनकी इंटरसेक्शन है वो 5 है. ठीक है, मींस एम्प्टी है, कोई हाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है दो रिलेशंस में. ठीक है, सो हियर वी से इफ एट्रीब्यूट्स ऑफ r and r, s and s are not disjoint, तो रिमेनिंग जो आपका रीनेमिंग होगा तो आपको यूज करनी पड़ेगी. while writing the queries प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि अगर आपके जो सेट्स हैं, ठीक है, आप कंसीडर कर रहे हो कि वो डिसजॉइंट है, तो रिजल्ट उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है इंटरसेक्शन में. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो
आपको उसमें रीनेम रो ऑपरेटर यूज कर सकते हो इजी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। देन कॉम्पोजिशन ऑपरेशंस, here we say can be built using multiple operations, कि आप कंबाइन कर लो मल्टीपल ऑपरेशंस को, ठीक है। सो इन दिस केस आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, सिग्मा के साथ a कॉमा b, तो एट्रीब्यूट्स अगर आप रिटर्न करवा रहे हो वट एवर एट्रीब्यूट्स यू आर रिटर्निंग, एंड और क्या कर रहे हो, आर एंड एस की कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हो। तो आर एंड एस की जब कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म हुई तो ये आउटपुट आ गई। अब इस आउटपुट पे से क्वेरी क्या लग रही है, जहां पे a की वैल्यू एंड c की वैल्यू सेम है, तो वो वाला आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो नाउ वी डिस्कस्ड के जो रिलेशनल अलजेब्रा इज योर प्रोसीजरल, ठीक है। तो जो भी आप प्रोसीजर डिफाइन करोगे ये उसी प्रोसीजर पे चलेगा। तो सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग बॉडमास रूल्स के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट के इनसाइड लिखा होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। फाइन, तो आपके पास राउंड ब्रैकेट में क्या है, आर क्रॉस एस, तो सबसे पहले क्या होगा, आर एंड एस रिलेशन पे कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की आउटपुट आ गई। अब जो इसका रिजल्ट आया उसमें से इक्वालिटी चेक होगी, दैट ए इक्वल टू सी। तो यहाँ पे भी ए एंड सी की वैल्यूज आ गई, सेम आ गई, इस केस में से इस टेबल में से वो आपकी रिटर्न हो जाएंगी। सो कॉम्पोजिशन ऑफ ऑपरेशंस मींस सिंपली यू आर यूजिंग multiple operations in same query. Now next we have rename operation. So it allows us to name, that is change the name and therefore to refer to the results of relational algebra expressions. Now see, suppose आपकी जो रिलेशनल अलजेब्रा की इक्वेशंस है वो कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है, उनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अगर बाय चांस इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में आपके पास क्या होएगा, उस केस में यू हैव टू डिवाइड द क्वेरीज इनटू सम पार्ट्स, और उसमें आप क्या कर लो, उसको रो ऑपरेटर यूज करके, जिसको हम रीनेम ऑपरेशन बोलते हैं, वो यूज करके उसके एक्सप्रेशन को, सब एक्सप्रेशंस को नेम दे दो। So it says के allows us to name and therefore to refer to the results of relational algebra expressions. Fine. So it allows you to refer to a relation by more than one name. अब आप इसको एक से ज्यादा रिलेशन से रीनेम करके as per your requirement यूज कर सकते हो, ठीक है। So here इसका सिंटेक्स क्या होता है, we use rename symbol, then x क्या होगा जो आप उसको नेम दे रहे हो, e क्या है, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन, जैसे आपने यहाँ पे लिखा होगा सपोज सिग्मा पाई a1 कॉमा a2 और आगे आपका रिलेशन, तो वो क्या होगी, फुल फ्लेज एक एक्सप्रेशन हो गई। उस एक्सप्रेशन में से आप इसको चूज कर रहे हो, जो आप रिजल्ट चूज कर रहे हो उस एक्सप्रेशन को आपने एक नेम दे दिया x। अब अगर आपने उस एक्सप्रेशन को कहीं पे यूज करना है तो आप उसकी जगह पे पूरी एक्सप्रेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप सिंपली यू कैन राइट दिस x जो आपने नेम दिया था, तो यहाँ पे भी आप x यूज करोगे, तो इट मीन्स जो पूरी आपने एक्सप्रेशन लिखी है आप उसको यूज कर रहे हो। सो इट सिंपली सेज इट रिटर्न्स द एक्सप्रेशन e अंडर द नेम x। नाउ if a relational algebra expression e has arity n means उसके number of columns जो उसमें है e एक्सप्रेशन में वो n है, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो कि रो x, अब x में क्या आ गया, सारे एट्रीब्यूट्स आपने सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ई में से, तो आपने a1 से लेके m तक आपके सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। सो इट विल रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन अंडर e and under the name x with the attributes a1 a2 up to an, तो वो सारे एक x नेम के अंडर रिटर्न हो जाएंगे सारे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, क्लियर? एनी डाउट, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन दिस? क्या चीज रिपीट करनी है, विच ऑपरेटर यू वांट टू रिपीट? हाँ जी बच्चे। मैम ये सेम वाले जो भी आपने कहा था ना, ये मैम ये जो भी आपने बताया था, ओके, ये रीनेम वाला, रीनेम ऑपरेटर, ओके। रीनेम ऑपरेटर इज नथिंग एल्स, इट सिंपली सेज कि अगर आपकी कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को आप एक नेम दे सकते हो। सपोज आपने कोई मैथमेटिक्स में कोई क्वेरी सॉल्व कर रहे हो, आपका क्वेश्चन काफी लॉन्ग है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप उसके कुछ पार्ट को सॉल्व करके उसको एक नेम दे देते हो, जैसे आप जनरली रिलेशनल अलजेब्रा में मैथमेटिक्स में भी करते हो कि आपने 10 to 15 लाइंस का एक सम सॉल्व किया, उस पोर्शन को, उस पार्ट को आपने एक नेम दे दिया,
लाइक आपने लिख दिया कि x इक्वल टू फुल आपका जो भी मैथमेटिक एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, अब आप पूरे का पूरा वो जो उसका रिजल्ट है, उसको रिजल्ट को यूज करने के लिए, उस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट होल कोड, आप सिंपली उस एक्स वेरिएबल को यूज कर लोगे जो आपने उसको नेम डिफाइन किया था। तो इट सिंपली मीन्स कि आपने जो भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, उस एक्सप्रेशन को आप एक नेम डिफाइन कर देते हो। जो भी आपने उस एक्सप्रेशन को नेम डिफाइन किया, उस पर्टिकुलर नेम को आप यूज कर सकते हो। अगर आप उस नेम को कहीं पे भी यूज कर रहे हो, इट मीन्स आप पूरी की पूरी एक्सप्रेशन राइट कर रहे हो उस केस में। इट सिंपली मीन्स कि यू आर राइटिंग द full fledged expression whenever you are using the name. Now clear? Hanji? Yes, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Let me open the next slide for this. Now we will be doing relational algebra example queries. Now see, here we are considering banking example, ठीक है, जिसमें हमारे पास दीज आर द रिलेशंस। एक ब्रांच रिलेशन है जिसमें ब्रांच नेम है, ब्रांच सिटी है, ब्रांच की एसेट्स है। ये वही स्कीम है जो हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ था लास्ट प्रेजेंटेशन में, ठीक है। एक कस्टमर रिलेशन है जिसमें कस्टमर नेम है, कस्टमर स्ट्रीट एंड कस्टमर सिटी है। देन अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम एंड बैलेंस इज देयर। then loan number, branch name and amount is there. For depositor, customer name, account and account number is there. Then borrower, customer name and loan number is there. So this is the relation, these are the relations that we have discussed in last presentation in the form of diagrammatical notations, ठीक है। Now first query says, here we are checking कि find all the loans over 1200. Now see where is the loan amount present. अगर मुझे लोन की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करवानी हो, द कंडीशन इज ऑन लोन अमाउंट। सो लोन की अमाउंट आपके पास इस टेबल में अवेलेबल है, लोन टेबल में, ठीक है। क्या रिक्वायर्ड है आपको, व्हाट वाज द क्वेरी? द क्वेरी सेज कि फाइंड द लोन्स ओवर 1200, मींस यहाँ पे भी अमाउंट ग्रेटर देन 1200 है। नाउ सी, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ मैम, नहीं है क्या? लो, क्लियर तो दिख रहा है मैम मैडम, नहीं है फिर क्यों परेशान हो रहा है? नदीम वीरे। हाँ हाँ वीरे, परेशान क्यों हो रहा है? अरे बस ऐसे ही, क्या करूं, परेशान ही परेशान। नदीम भाई, हेलो।
हेलो हेलो, हाँ जी मैम। यस मैम। यस मैम। इसको तो कोई प्रॉब्लम आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था ना आई थिंक मेरे एंड से। हाँ जी यस मैम। 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 यस मैम। Okay, okay, okay. Let's continue again. I think there was some network issue. Now see, we were considering if we are trying to find relations of all the tuples where loan amount is greater than 1200. Fine. तो what will we do in this case? जहाँ पे भी आपकी amount greater than यहाँ पे 1200 स्क्रीन है, शो कौन नहीं से हो relation से आ रही है? Let me check. Is it visible now? Yes मैम। Okay. Now earlier we were discussing about this query. ठीक है? What is happening in this case? We say कि find all the loans over 1200. Over 1200 means amount 1200 से greater है. जो आपको एग्जाम में queries आएंगे that will also be like this. जो previous slide में schema था, इस type से schema given होगा कि this is the given schema. ये relations हैं जहाँ आपको ये लिखा हो सकता है कि this is the relational model. ठीक है? ये रिलेशनल मॉडल है, मे बी आपको क्वेरी ऐसे आ जाए कि डिजाइन रिलेशनल मॉडल। ठीक है, तो अगर आपको ये रिलेशनल मॉडल गिवन है द क्वेरी मोस्ट प्रोबेबली आपका चांसेस यही है कि दिस इज द रिलेशनल मॉडल, जो दीज आर द रिलेशंस गिवन। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज रिलेशंस परफॉर्म दीज क्वेरीज। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा होगा, वो आपको ये नहीं लिख के देंगे कि कौन सा टेबल का नेम है, क्या आपके कौन से कॉलम से वैल्यू आएगी। द क्वेरी विल बी सिंपल इंग्लिश लाइक क्वेरी, इट विल बी like this. It says कि find all the loans over 1200 means अब now we understood कि हमारे पास relation given है, तो over 1200 का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे भी amount greater than 1200 है। ठीक है, और वैल्यू कहाँ से आएगी, अमाउंट का वैल्यू यहाँ से मिल रही है और लोन टेबल से मिल रही है, तो ऑब्वियसली रिलेशन नेम क्या आ गया, लोन। ठीक है, और कंडीशन क्या है, वेयर, सो वी विल बी यूजिंग वेयर अमाउंट ग्रेटर देन 1200। ठीक है, इनको ध्यान से आपने लिखना है कि जो भी नोटेशंस हैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिखने हैं, उसके सबस्क्रिप्ट में ही लिखना है, सिग्मा के सबस्क्रिप्ट में आएगा अमाउंट ग्रेटर देन 1200 और उसके पैरेलली आएगा आपका यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ रिलेशन का नेम। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेरी सेज कि फाइंड द लोन नंबर फॉर ईच लोन ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 1200। अब ये कंडीशन सेम है अभी भी, विच कंडीशन इज सेम, विच सेज कि यहाँ पे भी आपकी अमाउंट है वो 1200 से ग्रेटर है, तो ये इतना पार्ट हमारा सेम आ गया। सो वी आर यूजिंग वेयर अमाउंट ग्रेटर देन 1200, बट इसके ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई हो गई है, दैट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अप्लाई हो गई बिकॉज इट सेज कि फाइंड द लोन नंबर, मुझे सिर्फ लोन नंबर कॉलम डिस्प्ले करवाना है, सारे कॉलम्स डिस्प्ले नहीं करवाने। इट सेज कि सिर्फ लोन नंबर डिस्प्ले करवाना है उनका जिनकी अमाउंट ग्रेटर देन 1200 है। नाउ आपके पास लोन नंबर भी लोन टेबल में अवेलेबल है, अमाउंट के जिसपे कंडीशन है वो भी लोन टेबल में अवेलेबल है, सो वी नीड ओनली सिंगल टेबल। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, क्वेरी को रीड करोगे कि कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, जो वैल्यू हमें चाहिए वो कौन से टेबल से मिलेगी। So in this case, firstly we have checked that the values that we are requiring will come from loan table. ठीक है, from this loan table the condition says कि where loan amount is greater than $1200. ठीक है, so this is the condition and we want to display loan number, so we will be writing pi loan number. So this will be your query, that is pi loan number amount greater than 1200. Any doubt in this query, any confusion in this query? Easy to understand, easy to write? No, ma'am. Yes ma'am. Okay, so let's move to next query which says यस मैम। find the name of all customers who have a loan. अब कंडीशन क्या है कि वो सारे कस्टमर्स के नेम आ जाएं यहाँ पे जिनका लोन है या फिर अकाउंट है या दोनों ही है, और बोथ, जब भी और बोथ आ गया तो इट मीन्स वी हैव टू गो विद यूनियन। ठीक है,
क्योंकि और कंडीशन आ गई ना, और बोथ, कि चाहे आपका ये है, चाहे लोन है, चाहे अकाउंट है, चाहे दोनों ही है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन ऑपरेशन। तो वैल्यूज क्या चाहिए हमें, कस्टमर के नेम्स, इट हैज सेट कि कस्टमर नेम्स, सो कंडीशन इज बाय कस्टमर नेम, किस किस के, जिनका लोन है वो कहाँ से मिलेंगे, बोरोवर टेबल से, जिनका अकाउंट है सिंपल कोई सेविंग अकाउंट है वो कहाँ से मिलेंगे, डिपॉजिटर से। So query will become like this, which says pie customer name from borrower or pie customer name from depositor, दोनों में से, because it was the condition के both हो। Any confusion in third query? Is again एक बार फिर से समझा। हाँ, now read first टास्क क्या करनी है आपने, सबसे पहले क्वेरी को रीड करना है, क्वेरी को रीड करके जो जो की पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इस केस में की पॉइंट क्या है, नेम्स, सो इसको हाईलाइट कर लोगे कि नेम्स की पॉइंट है, नेम्स ऑफ ऑल द कस्टमर्स। उसके बाद हु हैव लोन, नेक्स्ट की पॉइंट ये हो गया, फिर एन अकाउंट, ये की पॉइंट हो गया, और बोथ। तो इनमें से अगर मैं फर्स्ट इस पॉइंट को देखूं तो इट सेज कि मुझे कस्टमर के नेम्स चाहिए, तो इट मींस आपको क्या चाहिए, कस्टमर नेम्स। उसके बाद अब जब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हो विच सेज हैव अ लोन, तो जो लोन वाली डिटेल्स है वो कहाँ पे है, बोरोवर टेबल से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकाउंट, अकाउंट की डिटेल्स कहाँ पे है, डिपॉजिटर में, और बोथ, दोनों है। तो इट मींस यहाँ इससे आपको पता चलेगा कि कंडीशन आपकी कौन सी है, इट स्पेसिफाइज कि दोनों और बोथ का है तो यूनियन है। इसके बाद आप अपने टेबल देखोगे, आपने जो की पॉइंट नोट किए थे, फर्स्ट की पॉइंट फर्स्ट कस्टमर नेम, नाउ सी कस्टमर नेम आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, कस्टमर में भी है, ठीक है, उसके बाद डिपॉजिटर में भी है, उसके बाद बोरोवर में भी है। सो टेक दीज थ्री टेबल्स, फर्स्ट कस्टमर टेबल, डिपॉजिटर टेबल एंड बोरोवर टेबल, इट मींस कस्टमर नेम 3 टेबल्स में है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे अपने नेक्स्ट की पॉइंट पे, नेक्स्ट की पॉइंट वाज जिनका लोन है उनके कस्टमर चाहिए। अब अगर मैं सिर्फ एक टेबल को यूज करूं, यहां से कस्टमर नेम रिट्रीव करूं, तो इट मींस यहाँ पे कस्टमर नेम तो है बट कस्टमर की डिटेल्स है, बट ये डिटेल्स नहीं है कि उसका लोन है या नहीं है। सो आई विल बी डिस्कार्डिंग दिस टेबल, तो इस टेबल को मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, इट मींस मुझे इस टेबल से वैल्यू मिल जाएगी। तो जिनका लोन है वो आपको बोरोवर टेबल से मिल गई, ठीक है। जिनका सेविंग अकाउंट था, जब ऐसे सिंपल अकाउंट है तो वो आपको मिल गई डिपॉजिटर में से। तो कस्टमर नेम यहाँ पे प्रेजेंट है, सो आई नीड नॉट थर्ड टेबल, ठीक है। सो फर्स्ट इज हाईलाइट द पॉइंट्स, जो चाहिए उनको की पॉइंट्स को बना लो, की पॉइंट्स बना के फिर आप डिसाइड करोगे कि वो जो की पॉइंट्स हैं वो जो डेटा हमें चाहिए वो कौन कौन से टेबल से मिलेगा, उन टेबल्स को टिक मार्क कर लो। जब वो टेबल्स आपके डिसाइड हो गए उसके बाद यू विल बी डिसाइडिंग कि उन टेबल्स में से क्या चाहिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो आपकी वो चीज हो जाएगी। सो इन दिस केस और बोथ का तो हमारे पास आ गया यूनियन, इट विल डिस्प्ले कस्टमर नेम जिनका लोन है, कस्टमर नेम जिनका अकाउंट है जहां दोनों ही है, तो इस केस में आ गया बोरोवर। क्योंकि दो टेबल्स को ज्वाइन करना है यहाँ पे, तो ज्वाइन के लिए हम डिसाइड करेंगे कि इंटरसेक्शन लगनी है, यूनियन लगनी है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इन्होंने बोला है और बोथ, ठीक है। अगर एंड बोथ होता तो यहाँ पे यूनियन की जगह पे क्या आ जाता, आपका इंटरसेक्शन आ जाता। Now next query says, it says find the name of all customers who have a loan at Paris branch। अब इसमें सबसे पहले आप अपने की पॉइंट्स को एक जगह पे नोट कर लो। तो फर्स्ट की पॉइंट इसमें है कस्टमर नेम्स, हमें चाहिए क्या, कस्टमर नेम, इट सेज फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल कस्टमर्स। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हु हैव अ लोन, जिनका कोई लोन है, और ब्रांच का नेम गिवन है पैराडाइज ब्रांच। नाउ गो बैक टू स्कीमा, नाउ सी हमें क्या चाहिए था, कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम के लिए हमने स्टार्टिंग में ये 3 टेबल्स टिक कर लिए, यहाँ पे कस्टमर नेम मिलेगा। नेक्स्ट इट सेज कि जिनका लोन है, अर्लियर हमने लोन वाले कस्टमर कहाँ से पिक किए थे, डिपॉजिटर में से, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कस्टमर नेम तो है, बट जो थर्ड कंडीशन है दैट कंडीशन वाज के जो जिसका लोन है वो कौन सी ब्रांच से है। तो इस बोरोवर में कहीं पे भी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है
कि उनका ब्रांच नेम क्या था। तो इट मीन्स यहाँ पे ब्रांच नेम पैरेरीज मिलेगा, हमें उस टेबल को सर्च करना पड़ेगा। सो गो बैक टू द क्वेरीज। नाउ इस टेबल में देखो, इस टेबल में हमें क्या डेटा मिल रहा है, लोन है जिनका लोन नंबर और उनकी ब्रांच में मिल रही है, ठीक है, और अमाउंट भी है। तो अमाउंट पे अभी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, हमारी कंडीशन क्या थी, ब्रांच नेम इक्वल टू पैरेरीज। तो ब्रांच नेम पैरेरीज सिर्फ लोन टेबल से मिलेगा, तो इट मींस दिस टेबल इज मस्ट। इस टेबल के बिना हमें हमारा डाटा डिस्प्ले नहीं होगा। सो लोन टेबल इज अ मैंडेटरी टेबल। उसके बाद में आप चेक करोगे कि क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लोन, सो डिपॉजिटर टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ बोरोअर चाहिए होगा या कस्टमर, इन दोनों में से एक चाहिए होगा। अब आपने चेक करना है कि इन दोनों में से कस्टमर नेम वाला टेबल यूज करोगे या बोरोअर वाला। हाँ जी, कौन सा यूज करोगे, क्योंकि कस्टमर नेम आपको कस्टमर टेबल से भी मिल जाएगा, बोरोअर टेबल से भी मिल जाएगा। यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन सा टेबल यूज करना है। ये टेबल तो मस्ट है, लोन, ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ब्रांच नेम सिर्फ इसी में है, जहां से लोन ले रखा है उस मैम पर्टिकुलर कस्टमर में भी तो है ब्रांच नेम। वेयर इज, नो, कहाँ पे है कस्टमर में, कस्टमर नेम है, कस्टमर ओ स्टेट है, सॉरी, अकाउंट। customer city ओके है, अकाउंट में है। अकाउंट में है। तो अकाउंट टेबल क्या स्पेसिफाई करता है, डिपॉजिटर का। जो अब मैंने आपको कल स्कीमा दिखाया था, आई टोल्ड यू कि उसकी पिक क्लिक कर लो, उसको उस स्कीमा को देखो, उसमें कोई रिलेशनशिप भी नहीं है उनमें, ठीक है। जो अकाउंट टेबल है ना, अकाउंट टेबल क्या स्पेसिफाई करता है कि जिनका सेविंग अकाउंट है। अकाउंट टेबल आपका डिपॉजिटर से लिंक्ड था, लोन टेबल आपका बोरोअर से लिंक था। अंडरस्टैंड द स्कीमा केयरफुली। ये ठीक है, स्कीमा में रिलेशनशिप देखो ना कि दो टेबल्स रिलेटेड कैसे हैं। तो जो अकाउंट है, और अगर आप अकाउंट एंड लोन का देखते हो, ये तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टेबल है। अकाउंट सेज के सेविंग अकाउंट है, लोन सेज के उस पर्सन ने लोन ले रखा है उस अकाउंट से, ठीक है, उस बैंक से। तो दोनों ही डिफरेंट केसेस हैं। जैसे डिपॉजिटर स्पेसिफाइज कि उसका कोई सेविंग अकाउंट है, बोरोअर स्पेसिफाइज कि उस पर्टिकुलर पर्सन का कोई लोन अकाउंट है। सो बोरोअर एंड लोन आर रिलेटेड, डिपॉजिटर एंड अकाउंट आर रिलेटेड, ठीक है। तो उस केस में अब हमारे पास ये कंडीशन तो हो गई कि जिनका लोन है ब्रांच से, पैरेरेस से, तो इट मींस ये टेबल तो मस्त है। ये कंडीशन फॉर श्योर आ जाएगी, वेयर मींस सिग्मा, ब्रांच नेम इक्वल टू पैरेरीज और राउंड ब्रैकेट्स में लोन। ये तो फॉर श्योर है कि इतना पार्ट तो आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, कस्टमर नेम। तो मुझे ये बताओ कि कस्टमर नेम आई एम आस्किंग कि कौन से टेबल से पिक करोगे। एनी स्टूडेंट ट्राई टू आंसर। मैम डिपॉजिटर। वाई डिपॉजिटर, मैंने आई टोल्ड यू कि हम लोन की बात कर आपने रहे हैं, किसी तो ब्रांच बल्कि डिपॉजिटर उस साइड कहाँ से से आ आईडी से है। बोरोअर से नहीं देंगे हम, लोन नंबर भी और सॉरी कस्टमर मैम, भी है, बोरोअर से करेंगे। मैम बाय मिस्टेक बोरोअर ही है। व्हाई नॉट फ्रॉम, बोरोअर से ओके, व्हाई नॉट फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से क्यों नहीं किया, बोरोअर से क्यों कर रहे हो। मैम वो लिंक डायरेक्टली कनेक्टेड है बोरोअर के साथ। हाँ, क्योंकि देखो अगर इस केस में इफ आई से कि बोरोअर में कस्टमर नेम है और इसमें लोन नंबर है, अब मुझे जो ब्रांच नेम चाहिए लोन में से, वो किस टेबल से मिल रहा है, लोन से। तो लोन टेबल को जिस टेबल से कस्टमर पिक कर रहे हैं वो भी तो चाहिए ना। ये तो हो गया, यहाँ से रिट्रीव होगा कि जिनकी ब्रांच नेम पैरेडिस था वो सारे आ गए। सपोज मेरे पास 50 कस्टमर्स ऐसे आ गए, ठीक है, 50 रिकॉर्ड्स आ गए जिनके ब्रांच नेम पैरेडिस था। अब चाहिए क्या, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम किनके चाहिए, लोन नंबर से रिलेट होंगे। तो लोन नंबर आपको लिंक करके देगा नेक्स्ट टेबल से। अगर आप इसको कस्टमर से लिंक करोगे तो कस्टमर और लोन टेबल में कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो कॉमन हो। कस्टमर में कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है, लोन में लोन की डिटेल्स हैं, बट लोन एंड कस्टमर को रिलेट करने के लिए कोई भी सिंगल कॉलम भी ऐसा नहीं है जो इनको रिलेट कर सके। बट लोन एंड बोरोअर में कॉमन टेबल, कॉमन कॉलम है, दैट इज लोन नंबर। और इस लोन नंबर से ये लोन नंबर रिलेट करके आपको वहां से कस्टमर नेम आप पिक कर सकते हो। सो वी विल बी यूजिंग दिस टेबल। नाउ सी द फुल क्वेरी, इट विल बी लाइक दिस। इट सेज कस्टमर नेम रिट्रीव करने हैं, सो वी आर राइटिंग बाय कस्टमर नेम, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास दो टेबल्स यूज हो रहे थे, कौन से टेबल, बोरोअर एंड लोन। तो दोनों में हमने क्या परफॉर्म कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि सबसे पहले क्या करोगे, दो टेबल्स को ज्वाइन करोगे, दो टेबल्स को रिलेट लिंक करोगे। तो हमने क्या यूज किया, इसमें हमने यूज किया बोरोअर क्रॉस
लोन। सबसे पहले आप ये चीज कर दोगे, इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिख दोगे। उसके बाद में हमारी कंडीशन क्या है कि मैच भी तो करे ना रिकॉर्ड्स, तो वी आर यूजिंग वेयर borrower डॉट लोन नंबर इक्वल टू लोन डॉट लोन नंबर के वो बोरोअर और लोन को जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट इन पे परफॉर्म किया तो बहुत सी रोज आ गई, ठीक है। अब उनमें से हमने कौन से पिक करनी है, यहाँ पे बोरोअर टेबल का और लोन टेबल के लोन नंबर्स मैच करते हैं। सो वी विल राइट वेयर बोरोअर डॉट लोन नंबर इक्वल टू लोन डॉट लोन नंबर। जब ये आ गया, इस पे फर्दर कंडीशन क्या आ जाएगी, वेयर ब्रांच नेम इक्वल टू पैराडाइज। यहाँ पे ब्रांच का नेम क्या हो, पैराडाइज हो। जब ये कंडीशन आ गई, इन सब में से क्या रिट्रीव करोगे, पाई कस्टमर नेम, ठीक है। नाउ टेल मी, अगर मैं ये चीज कर दूं, ये वाली वेयर कंडीशन बाहर कर दूं, ये कस्टमर नेम वाली इसके ब्रैकेट के इनसाइड मूव कर दूं, तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, विल इट बी रॉन्ग और राइट? मैम तब फिर मल्टीपल वैल्यूज आ जाएगा ना? उसमें एक डिफरेंस आएगा एंड द सिंपलेस्ट आंसर इज के क्वेरी की कॉस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो प्रोसीजर आप डिफाइन कर रहे हो वो उसी प्रोसीजर से क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसमें प्रोसीजर क्या है, सबसे इनसाइड जो ब्रैकेट्स हैं वो है बोरोअर क्रॉस लोन की, ठीक है। तो इसमें ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास सपोज 100 रोज आ गई, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, बोरोअर एंड लोन नंबर। तो बोरोअर एंड लोन नंबर के मैच करके उसने रिकॉर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो यहाँ पे लोन नंबर मैच करे थे सिर्फ वही आए, तो मे बी वो 10 रह गए। अब उसके बाद में क्या आ गया, आपने क्या किया, पैराडाइज कंडीशन लगा दी कि ब्रांच नेम पैराडाइज है, सपोज 5 ही रह गए उसमें से। अब उन 5 के लिए क्या फेच कर रहे हो आप, कस्टमर नेम। तो इट मींस आप रिकॉर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करते हुए जा रहे हो। अगर इसका आप रिवर्स कर दो, सपोज ये वाली कंडीशन मैं इसकी जगह पे रिप्लेस कर दूं और ये वाली कंडीशन को यहाँ पे लिख दूं, मींस मैंने बोरोअर एंड लोन का क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर मैंने क्या किया, उसमें से वो पिक कर लिया जिनका ब्रांच नेम पैराडाइज था। वो पिक करने के बाद इस ब्रैकेट से बाहर मैंने क्या लिखा है कि अब मैं कॉमनैलिटी की कंडीशन लगा रही हूँ कि लोन नंबर एंड लोन बोरोअर और लोन नंबर एंड लोन नंबर डॉट लोन नंबर वाले मैच कर जाए। तो उससे क्या होगा, पैराडाइज ब्रांच वाले सबसे पहले रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। सपोज वो 10 रिकॉर्ड्स आए, अब उनमें से लोन नंबर मैच हुए। अब लोन नंबर बहुत कम के मैच करेंगे बोरोअर एंड लोन में से, तो इस केस में बहुत ज्यादा रोज आएंगी, तो क्वेरी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अब आपका जो डीबीएमएस होता है, जब आप इस क्वेरी को सीक्वल में परफॉर्म करते हो, चाहे आप इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। सीक्वल में सपोज यू हैव रिटन सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम, ठीक है, बोरोअर ज्वाइन लोन, क्योंकि उसमें हम ज्वाइन लगाते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप जब ज्वाइन लगा रहे हो, सो यू आर राइटिंग सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम बोरोअर इनर ज्वाइन, सपोज यू आर यूजिंग इनर ज्वाइन लोन वेयर ब्रांच नेम इक्वल टू पैराडाइज एंड बोरोअर डॉट लोन नंबर इक्वल टू लोन डॉट लोन नंबर। सपोज आपने इस टाइप से परफॉर्म किया, तो इट मींस आपका ज्वाइन परफॉर्म हो गए, कंपैरिजन हो गए, वो रोज रिस्ट्रिक्ट कर रही है, आउटपुट आपको आ जाएगी। डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा कि क्वेरी की कॉस्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर वो कैसे चेंज होएगी कि नंबर ऑफ रोज, मे बी ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो, ये कोई कंडीशन कम रिस्ट्रिक्टिव हो। ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आई थिंक आपके सिलेबस में क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं है, बट हम उसको क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन को वी विल डेफिनेटली डू, क्योंकि उससे आपको ना आइडिया लग जाएगा कि अगर आप क्वेरी को जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्वेरी का जिस फॉर्म में लिख रहे हो उसका बहुत इफेक्ट आता है क्वेरी की आउटपुट पे इन द टर्म्स के जो आपका उसके सीपीयू साइकिल्स की कॉस्ट है वो कितनी है। अदरवाइज रिजल्ट पे इफेक्ट चाहे आए चाहे ना आए, बट कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो आपका अब मैंने आपको सेकंड कंडीशन बोली थी कि मैंने पाई इनसाइड लिख दी और यो आपका ये वाला सिलेक्शन ऑपरेशन है इसको बाहर लिख दिया, मींस प्रोजेक्शन अंदर है सिलेक्शन बाहर है। उससे क्या इफेक्ट आता है कि जो आपका ये सिलेक्शन ऑपरेशन होता है इट इज मोर रिस्ट्रिक्टिव एज कंपेयर टू प्रोजेक्शन। नोट इट समवेयर इन योर नोटबुक्स, इस पॉइंट को नोट कर लो कि जो हमारा सिलेक्शन ऑपरेशन होता है
वो प्रोजेक्शन ऑपरेशन से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है, ठीक है, कि मींस ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज, सपोज करो एक टेबल में ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम्स होंगे, 15, 20, 50 कॉलम, बट रोज कितनी होंगी, थाउजेंड्स, 10,000, 50,000, ठीक है, और लैक्स। तो रोज बहुत ज्यादा हो सकती हैं, बट कॉलम्स इतने ज्यादा कभी भी नहीं होते एक टेबल में। तो अगर आप पहले रोज को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, तो अगर आपके पास 1 लाख रोज हैं या बिलियन रोज हैं, मे बी आपके पास 100 रोज ही आए। तो सबसे पहले आपने रोज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपके पास 100 रोज आ गई। अब उन 100 रोज में से आप कॉलम को रिस्ट्रिक्ट कर लो, जो चाहिए वो डिस्प्ले करवा दो। अगर इसका वाइस वर्सा मैं करती हूँ कि सबसे पहले मैंने कॉलम्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए, तो मेरे पास कॉलम आपने 50 में से 2 पिक कर लिए, बट रोज अभी भी आपके पास बिलियंस हैं, तो उन कॉलम्स के लिए बिलियन रोज एक्सेस होंगी। तो इट मींस उस केस में बाय डिफॉल्ट ये चीज क्लियर है, चाहे वो डीबीएमएस का रूल ही डिफाइंड है, इट हैज बीन डन अंडर रिसर्च आल्सो, कि आपका जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता है वो लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है एज कंपेयर टू सिलेक्शन ऑपरेशन। इसीलिए हम सिलेक्शन पहले परफॉर्म करते हैं, प्रोजेक्शन बाद में करते हैं। अगर आप प्रोजेक्शन पहले करोगे, सिलेक्शन बाद में करोगे, तो आपकी जो क्वेरी होगी वो लेस रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगी और क्वेरी की कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दिस विल बी द ओनली डिफरेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेरी इज, दैट इज द लास्ट क्वेरी फॉर टुडे। इट सेज फाइंड द नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स who have loan at Paradise branch but who don't have an account। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें सेट ऑपरेशन यूज होगा, बिकॉज वी आर सेइंग डोंट हैव। तो डोंट हैव में सेट माइनस सेट डिफरेंस ऑपरेशन यूज होता है, बट वी आर सेइंग वी आर रिट्रीविंग कस्टमर नेम, सो वी विल राइट पाई कस्टमर नेम एंड कंडीशन इज वेयर ब्रांच नेम इक्वल टू Paradise, ठीक है, एंड वेयर borrower डॉट लोन नंबर इक्वल टू लोन डॉट लोन नंबर। borrower एंड इस पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया जिसको आप ज्वाइन कर रहे हो, माइनस जो कस्टमर नेम आप डिपॉजिटर से पिक कर रहे हो, बिकॉज द कंडीशन वाज कि बट हु डोंट हैव एनी अकाउंट, जिनका कोई अकाउंट नहीं है, तो वो हमें सिंपली मिल जाएंगे पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर से। ये वाला आप फाइनल रिजल्ट से माइनस कर दोगे, आपकी दिस मच पार्ट ऑफ द क्वेरी जो आपका है, दिस मच पार्ट ये अलग से राइट हो जाएगा, और जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका अलग से राइट हो जाएगा इन दिस केस। एनी कंफ्यूजन? गो थ्रू दिस क्वेरी केयरफुली, इफ एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, then ask. Any doubt in this query? Read these 2 queries carefully. If you are having any doubt in any of the query, then ask me. So no query, then let's bind for bind today's session, bind up with today's session.